کراچی میں یہ منظر ابراہیم شرازی کی حویلی کا منظر ہے، جہاں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ عورتیں کچن میں کھانا پکانے میں مگن ہیں، جبکہ مرد حضرات ڈائننگ ہال میں میز پر بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ ابراہیم شرازی اور ریحانہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ عفنان شرازی جو سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا خاندان کا بیٹا یزدان شرازی، پھر اس سے چھوٹا شہریار شرازی جو اپنے بابا کے ساتھ مل کر ان کا بزنس سنبھالتے تھے، اور پھر مہرو جس کی شادی کی تیاریاں گھر بھر میں چل رہی تھی۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے جو ثاقب شرازی تھے، ان کے 2 بیٹیاں تھیں، نمرہ جو 20 سال کی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اس خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی جس کا نام حور تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ سفید سرخ رنگ ایسا ہاتھ لگاؤ تو میلا ہو جائے، دونوں گالوں میں پڑتا ڈمپل، ہونٹوں کے اوپر کالا تیل اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا تھا۔ پوری حویلی کی رونق ثاقب کی تو جان بستی۔ اپنی بیٹیوں میں حال ہی میں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی، اپنے مزے کی زندگی جیتی دکھائی دیتی تھی۔ اب ہے باری ابراہیم شرازی کی چھوٹی بیٹی مہوش کی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی انابیہ، جس نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب گھر پر ہی ماں کے ساتھ ان کے کاموں میں مصروف دکھائی دیتی تھی۔ دادو بھائی پھوپھو کب آئیں گی؟ پوچھیں نا ان سے۔ مہرو آپی کی شادی کی ساری تیاریاں بھی رہتی ہیں، کتنا کچھ لینا باقی ہے۔ انابیہ آپی جب تک آ نہیں جاتی ہم تب تک کسی فنکشن کے ڈریس نہیں لیں گی۔ نمرہ جو کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، نروٹے پن سے دادا سے بولی، جو ہنستے ہوئے سر ہلا کر پیار سے بولے، ہاں میری جان، جلدی آ جائیں گی تمہاری پھوپھو اور آپی بھی، بات ہوئی ہے میری اگلے ہفتے تک آ جائیں گی دونوں، آپ خوش ہو؟ یزدان بیٹا آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ اب کہ ابراہیم شرازی نے بڑے پیار سے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے آپ میں مگن موبائل پر مصروف نظر آ رہا تھا۔ خوبصورت گہری سیاہ رنگ کی آنکھیں، گورا رنگ، لمبا قد، فل باڈی بلڈر ٹائپ کی جسامت، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ جی دادو جان، اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھا چل رہا ہے اور شہریار کو بھی کافی سمجھ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اب کچھ سالوں کے بعد یہی سنبھالے گا، انشاءاللہ۔ ابراہیم شرازی اپنے دونوں خوبرو پوتوں کو دیکھتے بولے۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کے نام الگ الگ فیکٹریز کر دی تھی۔ جہاں عفنان کے دونوں بیٹے اس کی کمپنی کو سنبھالتے تھے، وہاں ثاقب اپنا بزنس الگ دیکھتے تھے۔ دادا جان اجازت دیں میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایک ضروری کام آ پڑا اچانک۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھتا بولا، تبھی آسیہ بیگم جو کھانا لگا رہی تھی اسے جاتا دیکھتے بولی، ارے کھانا تو کھا لو، مما میٹنگ ہے میری، ضروری لیٹ ہو رہا ہوں۔ حور جو سب دیکھ رہی تھی ہانگ لگاتی بولی، یزدان بھائی رات میں آتے ہوئے پلیز میرے لیے باہر سے کچھ لیتے آئیے گا، مجھے یہ سبزی نہیں کھانی۔ اس نے آسیہ بیگم کے ہاتھ میں سبزی کا سالن دیکھتے منہ بسور کے کہا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ یزدان پیار سے اس کے سر پر چیٹ لگاتا اور انگوٹھے سے ڈن کا اشارہ کرتا چلا گیا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، جب دیکھو اپنے لاڈ اٹھوانے کا موقع چاہیے اسے۔ آمنہ بیگم میز پر کھانا لگاتی اپنی بیٹی کو ڈانٹتی بولی، مما جو بھی کہہ لیں میں یہ سبزی نہیں کھانے والی، یہ آپ کو اور آپا کی سب کو مبارک۔ میں نہیں یزدان بھائی، جو رات پیزا لائیں گے میں تو وہی کھاؤں گی، اس کے لیے سب کو گڈ نائٹ۔ یہ کہتی ہوئی وہ بچوں کی طرح چہکتی وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ بیٹا اٹھ جاؤ، بابا نیچے ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ انابیہ کی ایک دم آنکھ کھل گئی۔ جی موم 5 منٹ نہیں بس، جلدی آؤ میری جان۔ یہ کہتے وہ محبت سے بیٹی کا چہرہ دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ اچھے سے فریش ہوتی نیچے ہال میں چلی آئی، جہاں رمیز خان اپنی بیٹی کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ انابیہ تو باپ سے آتے ہی لپٹ گئی۔ مہوش بیگم لازمہ سے کہہ کر ناشتہ لگوانے لگیں۔ بابا جان کی کال آئی تھی، اگلے ماہ سے مہرو کی شادی شروع ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے رمیز میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ مہوش بیگم ناشتہ کرنے کے ساتھ کل کی ساری تفصیل بھی شوہر کے علم میں دیتی بول رہی تھی۔ بیگم میں ضرور چلتا، لیکن بہت ضروری میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ملک سے باہر جانا پڑے گا کچھ ٹائم کے لیے، میں شادی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، پلیز انابیہ کے ساتھ چلے جائیں۔ رمیز خان بیچارگی سے بیگم سے بولے تھے۔ انابیہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنس دی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ ہلکی پیچھے سے آتی آواز اس کے قدم روک گئی۔ رمیز آپ کو معلوم ہے، اس بار آپ کا میرے ساتھ چلنے کا مقصد ہمیں عفنان بھائی سے انابیہ اور یزدان کے رشتے کی بات کرنی تھی۔ میں اس معاملے کو مزید اور تاخیر میں نہیں ڈال سکتی، اب انابیہ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور یزدان سے بہترین میری نابیہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مہوش یہ کہتی جیسے کئی رنگ خوشی کے ان کے چہرے پر چھا گئے تھے۔ ان میاں بیوی کی دلی خواہش تھی کہ خاندان کا سب سے خوبرو اور قابل بیٹا ان کی بیٹی کا نصیب بنے، جس کے لیے انہوں نے خود سے آگے بڑھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیگم اس شادی کی گہما گہمی میں اتنی اہم بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، فی الحال جب سکون سے شادی انجوائے کر کے آ جائیں، اس کے کچھ وقت بعد ہم اس بات کے لیے واپس جائیں گے، عفنان بابا سب سے بات کریں گے۔ رمیز خان سمجھداری سے کہتے بیگم کو سمجھانے لگے، جو کسی طور پر ان کی باتوں سے خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
न जाने उन्हें किस बात का डर था, कहीं यज़दान को कहीं कोई और ना ले उड़े और वो मुंह देखती रह जाए। लेकिन रमीज़ खान उन्हें तसल्ली देते वहाँ से चले गए और दूर खड़ी अनाबिया जो ये सब बातें सुन रही थी, मन ही मन मुस्कुराती शर्माती वहाँ से भागकर कमरे में आ गई। बाबा जान, महविश और अनाबिया कब आएंगे? आसिया बेगम किचन से भागती आती बोली, बेटा 2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। किसी बच्चे से कहो जाके अपनी फूफो को लेकर आ जाए। जी अच्छा, मैं अफनान से कह देती हूँ। लड़के तो सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं। आसिया बेगम जाने लगी जब इब्राहिम शराजी बोले, रूम सब सेट करवा दिए हैं, ऐसा ना हो कि महविश को फिर कोई बात बुरी लग जाए। उसकी तो आदत है छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाने की। इब्राहिम शराजी आहर में हंसते हुए बोले, जी बाबा जान, मैंने मुलाजमा को कह दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। आसिया बेगम अपनी छोटी नंद के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए किसी को कोई शिकायत का मौका दिए बिना वो पहले ही सब इंतज़ाम कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान आप? यह ज़दान नहीं आया हमें लेने। मैं एयरपोर्ट से जैसे निकलती सामने आई अफनान को उन्हें अकेला लेने आता देखती उदासी से बोली, वो शायद इस खुशफहमी में थी कि उनका चहीता भतीजा अपनी इकलौती फूफो को खास तौर पर एयरपोर्ट लेने आएगा, लेकिन अफनान को अकेला आता देख उनका चेहरा मुरझा गया। अनाबिया भी ज़बरदस्ती मुस्कुराती अफनान के सामने सर झुकाकर सलाम करती इधर उधर देखने लगी। अफनान अनाबिया और महफिश के सर पर हाथ रखते बोले, अरे भाई, ये ज़दान तो हमारे हाथ नहीं लगता, वो तुम्हें कहाँ से लेने आएगा? बेचारा बहन की शादी की तैयारियों से लेकर पूरा घर संभाले हुए है, रात गए घर आता है बेचारा। चलो आ जाओ बेटा। अफनान उनके हाथ से सामान लेते गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जब महविश और अनाबिया फीके चेहरों के साथ उनके पीछे चलने लगी। जब आधे घंटे के सफ़र के बाद वो घर पहुँच गए, गाड़ी इब्राहिम शराजी की हवेली के आगे रुकी तो सब इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। महविश बाबा जान से मिले। उन्होंने महविश को अपने सीने से लगाकर उन्हें प्यार किया और फिर अपनी प्यारी नवासी को गले से लगाया। अस्सलाम वालेकुम फूफो। महरू, हूर, निमरा सब ने महविश को आगे बढ़कर सलाम किया। जब अनाबिया एक एक करते सबसे मिलती गई, अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है अनाबिया। सब इन्हें देखकर खुश हो रहे थे। सब हवेली के अंदर शामिल हो गए। हवेली में इस वक्त गहमा गहमी लगी हुई थी। इब्राहिम ने अपने दामाद के बारे में पूछा, जिस पर महविश ने बताया कि वो ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ सकेंगे। यज़दान और शहरयार कब तक आएंगे? रात के 9 बज रहे थे जब खाने की मेज़ पर बैठे महविश ने तजस्सुस से अफनान से पूछा, अभी वो कुछ कहते जब शहरयार अंदर आता दिखाई दिया। महविश को सामने बैठा देखता मुस्कुरा कर उनसे मिलने लगा। महविश भी अपने इतने प्यारे भतीजे से खुश असलूबी से मिलने लगी। वो भी इन्हें अजीज़ था, लेकिन यज़दान की बात ही कुछ और थी। यज़दान नहीं आया, तुम अकेले आए हो? महविश ने तीसरी बार था जो यज़दान का पूछा था, जिस पर आसिया बेगम पहलू बदल कर रह गई। वो अच्छे से समझती थी, बच्ची तो थी नहीं जो उनके इरादों को ना समझती। जी पुप्पो, वो हम मीटिंग में है, रात देर गए ही उनकी वापसी मुमकिन हो। आप लोग खाना खाएं, उनका इंतज़ार मत करें, वो खाना खा कर आएंगे। शहरयार एक नज़र सामने अनाबिया को मुस्कुरा कर देखता कुर्सी पर बैठ गया, जो अपना सर झुकाए चम्मच बिला वजह प्लेट में चला रही थी। इसी तरह सब आपस में बातें करते रहे। रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। जब रात गई यज़दान थका हारा घर आया। उसके कदम अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे जब इसे पीछे से हूर की आवाज़ आई, यज़दान भाई, पानी पिलाऊं? अब थक गए हैं। खाना लाऊं आपके लिए? उसने पलट कर इस थकावट में भी प्यार से उसे देखा। गुड़िया, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बस एक कप चाय मिल जाए। वो शायद नींद में पानी पीने के लिए उठती किचन में आई थी जब उसकी नज़र यज़दान पर गई। अभी लाई, मुस्कुरा कर कहती वो जल्दी से उसके लिए एक कप चाय बनाकर लाती। उसके रूम में बेधड़क आई, जहाँ वो फ्रेश होता सोफे पर बैठा था। चाय का कप देखता मशकूर नज़रों से हूर को देखने लगा, जो इतनी छोटी होकर भी सबका ख्याल रखती थी। खासकर यज़दान का तो बहुत। वो भी तो उसको छोटी सी गुड़िया की तरह ट्रीट करता था। उसकी हर जिद पूरी करना जैसे यज़दान पर फ़र्ज़ था। वो उसे छोटे बच्चों की तरह प्यार करता था। अब की चाय? हूर नींद से भरी अपनी खूबसूरत आंखों को मसलती यज़दान को चाय देती बोली, जो उसे देखकर अब हंस रहा था, मैं जा रही हूँ, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए, है ना? अब क्या नाराज़ नज़रों से उसे देखती बोली। जब यज़दान नफ़े में सर हिलाता बोला, मेरी गुड़िया ने अपनी मुझे हर चीज़ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, ये काफ़ी है, अब आप सो जाएं बच्चा। जब वो भी मुस्कुराकर हाथ हिलाती वहाँ से चली गई। सुबह नाश्ते की मेज़ पर महविश की मुलाकात यज़दान से हुई, जो उसे देखकर वारे सदके जा रही थी। अनाबिया भी यज़दान को देखती शर्मा। इसके बाद वो मज़ीद वहाँ रुक न सका और नाश्ते के फ़ौरन बाद घर से चला गया, जबकि उसने शहरयार को घर पर रहने को कहा कि मेहमानों का अब आना जाना लगा रहेगा तो इसकी ज़रूरत घर वालों को पड़ सकती है, तब तक वो सब संभाल लेगा। शहरयार को क्या चाहिए था? वो तो बहुत खुश था इसे मौका जो मिल गया था मस्ती मजाक करना और ज़िंदगी खुलकर जीने का, वरना कितने टाइम से वो दिन रात का फ़र्क भुलाए अपने भाई के साथ कारोबार सीखने में मसरूफ़ था। बहरू, अनाबिया, निमरा सर जोड़े पता नहीं किन बातों में लगी थी, जबकि हूर अपने सारे कपड़े चेक कर रही थी जो शायद पहनने थे। अरे कोई मुझे भी बता दो कि कौन सा ड्रेस किस फंक्शन में पहनूं। थक कर तब से उनके बराबर बैठी हूर बोली। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उठकर खोलने पर दरवाजे के सामने शहरयार खड़ा दिखाई दिया। शहरी भाई, इस वक्त हम बहुत अहम मसले पर बातचीत कर रहे हैं, आप प्लीज़ जाएं।
हूर बच्चों की तरह बोलती वापस दरवाज़ा बंद करती। जब शहरयार सर पीटता बोला, अरे हूर, सारी लड़कियों को बोलो जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑर्डर आया है तुम सबको शॉपिंग करवाने का। शहरयार उसके पीछे से अंदर कमरे में झांकता बोल रहा था, जबकि हूर इसकी बात सुनकर ज़ोरदार नारा लगाती। डांट से दरवाज़ा शहरयार के मुंह पर बंद करती बोली, आप इंतज़ार करें, हम आ रहे हैं। भागम भाग सारी लड़कियां जल्दी से तैयार होती नीचे आईं, जहाँ शहरयार उनका ही इंतजार कर रहा था। मेहरू, अनाबिया, निमरा पीछे, जबकि हूर शहरयार के साथ आगे सीट पर बैठी थी। शहरयार की नज़र बैक मिरर से नाबिया पे टिकी थी, जिसका रोशन चेहरा सूरज की किरणों में भी चमक रहा था। शहरयार नाबिया के लिए अपने दिल में जज्बात रखता था, लेकिन कभी कहने की उससे हिम्मत न कर सका। फिर कारोबार की वजह से वो इस कदर मसरूफ़ रहा कि अपने जज्बों को कुछ वक्त के लिए उसे बुलाना पड़ा। लेकिन आज जब अनाबिया उसके सामने आई तो वो अपने जज्बों को मज़ीद उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया। सब लड़कियों ने शहरयार को खूब घुमाया, उसे बहुत तंग भी किया। इस खूबसूरत पलों को गुजार कर जब खूब इंजॉय करते खाते पीते वो सब घर वापस आ गए। आज इब्राहिम शराजी की हवेली को खूबसूरती से सजाया गया था। मेहरू की मेहंदी का फंक्शन था, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था, इधर उधर भाग रहा था। जबकि वही एक कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि हूर का आज की ड्रेस का दुपट्टा कहीं खो गया था। सारे कपड़े ज़मीन में बिखरे पड़े थे। आमना बेगम जो किसी काम से कमरे में दाखिल हुई तो ये मंजर देखकर चीख पड़ी, हूर, ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का, पागल हो क्या? अम्मी, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, फंक्शन शुरू होने वाला है, मैं अब क्या पहनूंगी? हूर बच्चों की तरह रोनी सूरत बनाती बोली, अरे तो ऐसे कौन ढूंढता है मेरी जान? अच्छा, लाओ मैं ढूंढूं। तुम खुद रख के भूल गई हो, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। ज़रा जो तुम में कोई अक्ल नाम की चीज़ हो। आमना बेगम दुपट्टा ढूंढती रही जो सामने ही पड़ा था, लेकिन मजाल है जो हूर को कोई चीज़ मिल जाए। दूसरे घर जाएगी तो क्या बनेगा इस लड़की का? आमना बेगम ने हंसकर बेटी को कहा तो दोनों हंस दी। जल्दी तैयार हो जाओ मेरी जान। जी अम्मी। हूर कपड़े लेकर मैचिंग ज्वेलरी निकाली और आमना बेगम दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। शहरयार तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो सामने अनाबिया को शानदार तैयारी में देखता खो गया। मोतियों के काम वाली पिंक शर्ट और ट्राउज़र पहने, दुपट्टा को गले में एक साइड पर डाले, खुले बाल जो चेहरे पर पड़े थे, सफ़ेद पैरों में ऊंची खूबसूरत सैंडल में वो इसके दिल के जज्बों को बहका गई। शहरयार मुस्कुराता हुआ उसके करीब आता बोला, अच्छी लग रही हैं आप। अनाबिया जो अपने आप में मगन दुपट्टे को संभालने में हलकान हो रही थी, अचानक आती आवाज़ पर उछल पड़ी। जबकि उसकी नज़र शहरयार पर गई जो आज सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने बहुत जच रहा था। उसे खुद की तारीफ करता देख अनाबिया बमुश्किल मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया। न जाने क्यों उसकी आंखों की चमक देखकर अनाबिया कंफ्यूज हो जाती थी, जैसे वो इससे कुछ कहना चाहता हो। इसकी आंखें जैसे अनाबिया के अंदर तक झंझोड़ देती थी, जिससे वो शहरयार से बहुत कोशिश करती थी दूर रहने की, क्योंकि इसके खामोश तो किसी और के साथ की तमन्ना की थी, जो आंख उठाकर इसकी तरफ देखना तो दूर इसकी ज़ात से भी अनजान था। अब भी पता नहीं वो हवेली के किस कोने में उससे छुप के बैठा था कि इसका दीदार करने और इसकी नज़रों में आने के लिए। आज नाबिया ने इतनी तैयारी की थी, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? शहरयार ने इसे सोचों में गुम देखा तो हंसकर बोला, जी कुछ नहीं, मुझे लगता है अम्मी बुला रही हैं, हमें जाना चाहिए। ये कहती वो इसकी नज़रों से बचकर भाग जाने के लिए बहाना करती आगे बढ़ी। जब शहरयार ने मुस्कुराकर सामने आते अचानक इसका रास्ता रोक लिया। अनाबिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। अनाबिया धड़कते दिल से उसके बेहद करीब खड़ी अब डर रही थी, कहीं वो ऐसा कुछ ना कह दे जिससे अनाबिया कमज़ोर पड़ जाए। वो उसके मासूम प्यारे दिल को कैसे तोड़ देती। शहरयार, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दें। आपको जो कहना है बाद में निम्रा और हुर की मौजूदगी में कह दीजिएगा। फ़िलहाल किसी ने हमें यहाँ अकेले देख लिया तो गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे जाने दें। अनाबिया झुंझलाकर कहती बिना उसकी तरफ देखे साइड से तेज़ी से निकलती चली गई, जिस पर शहरयार हंसकर बालों में हाथ फेरता खुद से बोला, मेरी जान, जितना भागना है भाग लो। एक दिन जब हक से तुम्हें अपना नाम कर लूँगा तब कोई रास्ता नहीं बचेगा मुझसे भागने का। यदादान बाहर गार्डन में सारे इंतजाम देखता एक तरफ लड़कों को हदायत दे रहा था, दूसरी तरफ उसके फ़ोन कॉल्स जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर के अंदर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए थकन और बेजारी उसके चेहरे से यहाँ हो रही थी। जब इब्राहिम शराजी उसे अभी तक कामों में उलझा हुआ देखकर नाराज़गी से उसके पास आते बोले, बेटा बस कर दो, ये काम तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। जाओ जाकर तैयार हो, मेहमान बस आते ही होंगे। उनकी प्यार भरी डांट सुनता यज़दान मुस्कुराकर सर हिलाता अंदर चल दिया और फिर आधे घंटे में ही तैयार होता हुआ सब मेहमानों के बीच था। बेहद हैंडसम दिखाई देता, माथे पर बिखरे घने बाल, गहरी सी आंखें, वो किसी भी लड़की को दीवाना बना देने की हद तक हसीन लग रहा था। आज तो उसकी इकलौती प्यारी बहन की शादी थी, इससे तो सब में नुमाया लगना ही था। वहीं दूसरी तरफ तमाम लड़कियां भी कुछ कम नहीं लग रही थी, और हूर इसकी तो बात ही अलग थी। ऑरेंज और येलो कलर का लाइट सा काम का शरारा इस पे अपने गोल्डन सिल्की कमर से नीचे आते बालों को छोटे से कैचर में कैद किए, माथे पर फूलों का
टीका लगाए, फूलों के कंगन और बालियां पहनी, गालों को हल्का सा रेड शेड लगाकर लाइट सी लिपस्टिक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे भाई आज तो आप शहजादे लग रहे हैं, कितनी लड़कियां गिराने का इरादा है? शहरयार यज़दान के कान में फसफसाया, जिस पर यज़दान ने गौर से देखा। इसके बाद तमाम मेहमान आ गए। जब महरू को फूलों की चादर के नीचे लाते स्टेज पर बैठाया गया तो साथ निमरा हूर और नाबिया भी वही एक तरफ खड़ी थी होती फंक्शन एंजॉय करने लगी। सारे रस्म व रिवाज हुए, होटिंग हुई, सब ने बहुत मज़ा किया। अब नेक की बारी आई तो हूर और निमरा ने शहरयार यज़दान को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेहंदी लगाते नेक मांगने लगी। चले भाई, इकलौती दुल्हन के दो हट्टे कट्टे भाई हैं आप, दोनों अपनी जेब हल्की करें वरना यहाँ से उठने का भूल जाए। निमरा और हूर जिद करती बोली, है ये रस्म कब इजाद हुई? शहरयार सर खुजाता मुसहारेपन से बोला, जिस पर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। यज़दान भाई, शहरी भाई तो सदा के कंजूस हैं, आप ही दिल बड़ा करते जेब खाली कर दे। अब के हूर ने नाक सुकड़ते यज़दान का हाथ थामकर लाडले अंदाज में कहा। जहां दूर खड़ी महविश जो अब तक तो इस नोक झोंक को एंजॉय करती मुस्कुरा रही थी, अचानक हूर को यज़दान का हाथ पकड़ते देख तासुरात लिए फसली निगाहों से हूर को देखने लगी। नाबिया भी जो अब तक वही खड़ी ये सब देखती हंस रही थी, वो भी इस हूर की इस हरकत को नोट करती खामोशी से नीचे स्टेज से उतर आई। यज़दान जो हूर की जिद करने और हाथ को जोर जोर से हिलाने पर हंस रहा था, जेब से पैसे निकाल कर अब हूर को देने लगा। अब तो खुश होना गुड़िया। यज़दान उसकी जिद के आगे हार मानते हुए बोला, हाय हाय हसीन डाकू रानी, दिन दहाड़े मेरे मासूम हैंडसम भाई को लूट कर ले गई। शहरयार इतने सारे पैसे हूर के हाथ में देखता सदमे से यज़दान पर गिरता बोला। निमरा और हूर तो जोर जोर से होटिंग करती नीचे स्टेज से उतर आई, लेकिन उनकी इस नोक झोंक को कितने मेहमान देखते हंसते रहे। लेकिन मैं भी शब मुंह बनाए न जाने क्यों सबसे अलग थलग होकर बैठ गई थी। जब रेहाना बेगम जो महविश की माँ थी और इब्राहिम शराजी की ज़ौजा मोहतरमा उन्हें इस तरह अकेला बैठा देख वहां आते बोले, अरे महविश, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बताओ, अकेली क्यों बैठी हो? बेटा आओ, सब बोल रहे हैं। नहीं अम्मा, मैं यहीं ठीक हूँ। देख नहीं रही अपनी पोतियों के छिछोरेपन, कैसे बेधड़क भाई बड़े भाई का हाथ पकड़ देती हैं। तौबा तौबा, ये तरबियत की है अमना ने अपनी बच्चियों की। ज़रा जो बड़ों की इज्जत, इनकी मौजूदगी का ख्याल हो, कोई शर्म लिहाज ही नहीं। मेरी नाबिया इस जगह ऐसी कोई हरकत करती तो आप देखती मैं क्या करती। अव्वल तो मेरी बच्ची की मैंने ऐसी तरबियत की ही नहीं, बड़ी मासूम और प्यारी बच्ची है मेरी। महविश ने मुंह बिगाड़ता दिल की तमाम बड़ास माँ के सामने निकालती बोली, नहीं महविश, ऐसी बात नहीं है। आमना ने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, हमारी आंखों के सामने पले बड़े हैं। ये सब बच्चे हूर, निमरा, ये बच्चियां शहरयार और यज़दान को अपना बड़ा भाई समझती हैं। वो भी इन बच्चियों को बहनों की तरह समझते हैं। महरू और हूर निमरा में कभी फ़र्क नहीं किया। तुम भी देखो निमरा और हूर कितनी छोटी हैं। शहरयार और यज़दान से क्या कभी तुमने यज़दान को किसी लड़की से बात भी करते देखा? ये तो हूर है जिससे वो बात भी कर लेता है, इसके नाज नखरे भी उठा लेता है, क्योंकि वो घर के तमाम बच्चों में सबसे छोटी और हसास है। वो तो इसे गुड़िया और बच्चा कहकर बुलाता है। तुमने बिला वजह गलतफहमी को दिल में पाल लिया है। दफ़ा करो इन सब बातों को, उठो और सबके साथ आकर बैठो। रेहाना बेगम दुपट्टा संभालती उठती बोली। जब महविश तंजिया हंसती बोली, यज़दान हूर को जितना भी बच्चा समझ ले अम्मा, तो दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम ही अलग तो है ना, और इस्लाम इतना बेतकल्लुफ़ होने की ये गैर महरम के साथ इजाज़त नहीं देता। आमना को चाहिए ज़माने के ऊंच नीच से बच्चियों को आगाह करे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। माँ की कही तमाम बातों से इन्हें कुछ हाथ तसल्ली नहीं हुई थी। तभी जो दिल में बात थी वो इससे कहती उठी और अंदर चली गई। आहर कैसे बर्दाश्त कर लेती। जो ख्वाब उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा था वो कोई और आकर उस पर डाका डाल देने वाली थी। रात का फंक्शन रात देर गए तक चलता रहा, जहाँ फिर बड़ों को ही डांट डपट कर सब यंग पार्टी को वहां से भेजना पड़ा, क्योंकि कल बारात थी तो ये दिन सबसे अहम था। हूर कमरे में थकी हारी आती अब नाराज नज़रों से इधर उधर देखने लगी। जहाँ कुछ मेहमान उसके कमरे में काबिज बड़े आराम से बेड पर सो रहे थे, मजबूरन उसे सोफे पर सोना पड़ा, जो इत्फाक से हाल ही था। अब सुबह होने में वक्त ही कितना था जो वो नहरे दिखाती। दिन भर की थकी थी, तब ये धड़म से सोफे पर गिरती नींद की वजह में खो गई। खुशियों से भरा सुबह का सूरज नमूदार हुआ तो इब्राहिम हवेली में हर तरफ गहमा गहमी शुरू हो गई। टेबल पर सब बैठे नाश्ते में मसरूफ थे। जब इब्राहिम शराजी बोले, अरे हूर बेटा, रानी कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं? से जगाओ जाकर, आज बारात है, बहुत सी तैयारियां करनी होंगी उसे, फिर ऐन वक्त पर इधर उधर भाग रही होगी। निमरा उनकी बात सुनकर उसे जगाने की नीयत से कमरे में आई। हूर, उठ जा यार, 12 बज रहे हैं, फिर शाम की तैयारी भी करनी है। निमरा उसे सोफे पर सोता देखती हैरत से बोली, आप ही सोफे पर लेटने की वजह से मैं ठीक से सोई ही नहीं। अभी तो मेरी आंख लगी थी, आप आ गई। अभी जाएं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हूर नींद में डूबी आवाज़ लिए बेजारी से बोली, दादा जान नीचे तुम्हें बुला रहे हैं, चलो उठो। निमरा किसी तौर पर उसे ले जाए बगैर जाने वाली नहीं थी, इसलिए हूर को मजबूरन उठना ही पड़ा। मुँह हाथ धोती वो अभी भी नींद के खुमार से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। जब सबके बीच आती, सलाम करती, नाश्ता करने लगी, फिर इसके बाद सब तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। लड़कियां सब पार्लर चली गई।
दुल्हन के साथ जब कई अज़ान और शहरयार घर पर सब तैयारियां देखने लगे। शादी की वो रात भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तमाम मेहमान नीचे तैयार होकर आते गाड़ी में बैठने लगे। यज़दान ने ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहना था जो इस पर बहुत जच रहा था, जबकि शहरयार ने ग्रे रंग की घेरेदार शलवार कमीज़ पहनी थी। कम वो भी नहीं लग रहा था। हाँ भाई यज़दान, बच्चियाँ सब कहाँ हैं? अफनान साकिब इब्राहिम यज़दान के पास आते ही परेशानी से बोले, आप सब परेशान ना हो, वो मेहरू के साथ पार्लर में है। बिल्कुल तैयार। आप लोग मेहमानों को लेकर हॉल में पहुँचे। मैं मेहरू और बाकी बच्चियों को लेकर हॉल में पहुँचता हूँ। शहरयार आप लोगों के साथ होगा। यज़दान जल्दबाजी में कहता अपनी बड़ी सी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जब सब मर्द हजरात भी इसकी बात मानते उसके कहने पर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। पार्लर के बाहर खड़ा यज़दान लड़कियों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब उसने सबसे पहले मेहरू को देखा जो दुल्हन बनी बहुत हसीन लग रही थी, उसकी आज रोसत होने का सोचकर यज़दान उदास हो गया। फिर उसकी नज़र जब पीछे आती हूर पर गई तो एक पल को इसे पहचान ही नहीं पाया। वो इतनी प्यारी लग रही थी जैसे आसमान से उतर कर आई कोई सच की हूर हो। यज़दान तो उसे देखकर हैरान ही रह गया। वो इस वक्त ग्रीन मैक्सी पहने एक मुकम्मल दशहज़ा का रूप धारे हुए थी। कोई इसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 17 साल की बच्ची है। अनाबिया बाहर आती यज़दान को देखकर शर्मा गई, जबकि यज़दान ने उसकी तरफ देखना तो दूर एक निगाह डालना भी ज़रूरी नहीं समझा। तमाम लड़कियों को गाड़ी में बिठाता वो अपनी सीट की तरफ आया। हूर जिद करती आज भी हमेशा की तरह उसके साथ सामने वाली सीट पर बैठी थी, जिस पर अनाबिया एक बार फिर दिल में हूर के लिए बदगुमानी को बढ़ने से रोक ना सकी। हॉल में पहुंचने पर सब ने दुल्हन के साथ नाबिया, निमरा और सबसे बढ़कर हूर की बहुत तारीफ की। इब्राहिम शिराजी तो अपने हुबरू पोतों पोतियों और नवासियों पर तो पैसे भी निछावर किए। फिर थोड़ी देर में बारात के आने का शोर उठ गया। दूल्हे के शानदार इस्तकबाल के बाद उसे लाकर स्टेज पर बिठाया गया। फिर अजाबो कबूल के बाद मेहरू को भी अपने मजाजी खुदा यानी अहमद के बराबर लाकर बिठा दिया गया। उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो, कैसी हो? शहरयार मौका देकर अनाबिया के पास आता बोला, जो फ़ोन पर शायद अपनी तस्वीर ले रही थी। अनाबिया ने नज़र पलट कर देखा तो शहरयार मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अनाबिया भी अब नॉर्मल अंदाज में बोली, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शहरयार के इतने खूबसूरत अंदाज में तारीफ करने पर अनाबिया हक्का बक्का रह गई और उसकी आंखों से झलकते जज्बात अनाबिया से छुपाए नहीं छुप रहे थे। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा, शहरयार ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो अनाबिया ने एक नज़र पूरे हॉल में घुमाई और जल्दी से अपनी मामा की तरफ चली गई। इसके इस तरह जाने पर शहरयार के चेहरे पे हंसी आ गई। मेरी ब्यूटी क्वीन, बहुत जल्द चुरा लूँगा तुम्हें सबसे और ले जाऊँगा अपनी दुनिया में, शहरयार ने हंसते हुए खुद से कहा। कुछ देर रस्मों के चलने फिर खाने से फारिग होने के बाद रुखसती का वक्त आया, जब इब्राहिम शराजी को पूरी फैमिली इस पर उदास होती। अपनी लाडली बेटी को अहमद के साथ हमेशा के लिए रुखसत करती वापस हवेली आने के लिए निकल पड़ी। रात काफ़ी देर हो चुकी थी, ऊपर से दिन भर की थकन ने जैसे अब सबकी हिम्मत ही तोड़ दी थी। कोई इधर गाड़ी में ही सो रहा था तो कोई बारी ज़ेवरात से खुद को आज़ाद कर रहा था, कोई आज की मसरूफियत पर बातचीत करता नजर आ रहा था। हर कार आधे घंटे की मुसाफत पर तमाम गाड़ियां हवेली के हदूद में दाखिल होती दिखाई दी। एक एक करके सब गाड़ी से नीचे उतरते अपने अपने कमरों में जाने लगे। हूर इस वक्त नींद में झूमती कमरे में आई। कपड़े चेंज करती वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी आंखें सामने बेड पर कल वाले मेहमानों को आज फिर उसके बेड पर धड़ल्ले से बर्जमान देकर खून के घूंट पी कर रह गई। उसने सोच कर रखा था आज वो जल्दी से आकर अपने बेड पर आराम से कल की नींद भी पूरी करेगी, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं था। सोफे पर लेटने से उसकी कमर में बहुत दर्द हुआ था। आज तो वो यहाँ सोने का सोच भी नहीं सकती। नींद ही में बड़बड़ाई वो कब यज़दान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके हाली बेड पर आकर सोई, उसे होश ही नहीं रहा। जब 3 घंटे बाद यज़दान सारे मामलात निपटाते थका हारा अपने कमरे के दरवाज़ा खोल कर आया तो सामने हूर को बच्चे की सी मासूमियत लिए बेखबर सोता देखा तो पहले बहुत हैरान हुआ, फिर इसे ना जगाने का इरादा करता फ्रेश होकर वहीं सोफे पर सो गया। कौन सा सुबह होने में अब पूरी रात के गुजरने का इंतजार करना था। सुबह के 5 तो वैसे ही बज रहे थे। एक आधा घंटे में सूरज निकल आना था, यही सोचता यज़दान वही एक तरफ सोफे पर सो गया। जब सुबह के 8 बजे के करीब हूर एक अजीब से एहसास के नींद से भरी आंखों को खोलती हैरान नजरों से कमरे को देखती सोचने लगी कि ये उसका रूम तो है नहीं। फिर अभी वो ये सोच रही थी जब उसकी नज़र सामने सोफे पर लेटे यज़दान पर गई। वो सर पर हाथ मारती अपनी पूरी आंखें को खोलकर खुद को मलामत करती बोली, उफ, ये तो यज़दान भाई का रूम है। मैं शायद नींद में रात को उनके रूम में आ गई थी। बेचारे मेरी वजह से सोफे पर सोए। फिर जल्दी से उठती वो यज़दान के करीब आई। भाई भाई, उसके कंधे को हिलाती वो इसे नींद से जगाती बोली। जब यज़दान ने मंडाली आंखें खोलकर हूर कर सबीहा चेहरे को सवालिया नज़रों से देखा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप बेड पर आकर सो जाएं, ये कहती वो सीधी उसके रूम से बाहर चली आई। अपने बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेट कर
लपटती वो अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी महविश जो सामने से चली आ रही थी, उसे यज़दान के कमरे से इतनी सुबह निकलता देख वो भी बिखरी हालत में दंग रह गई। बेहतियार सीने पर हाथ रखे वो तेजी से हूर के पास आती, इसका बाजू जोर से दबोचती, "घर आई बेशरम बेहया लड़की, क्या तुम सारी रात एक गैर महरम के साथ उसके कमरे में रही?" वो इसे झंझोड़ते हुए पूछने लगी। "नहीं फूफो, मैं नींद में थी, मुझे नहीं पता चला।" खौफजदा चेहरे से वो महविश के गजबनाक तासुरात देख हकलाती हुई बोली। जब महविश बेगम ने नाओ देखा न ताओ, वो पहले ही दिन से हूर पर हार खाए बैठी थी। अब तो उन्हें मौका मिल गया था यज़दान के रास्ते से हूर को हटाकर अपनी बेटी नाबिया का रास्ता साफ करने का। तभी घसीट कर उसे नीचे सबके बीच में लाती वो चीखी के एक तमाशा लग गया। देखे अपनी छोटी प्यारी लाडली बेटी के काम, साकी बाई मोहतरमा सारी रात यज़दान के कमरे में उसके साथ सोती रही हैं, और हमें यहाँ के मर्दों को कोई इल्म ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे ये उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। महविश इस वक्त तमाम लिहाज एक तरफ रखती काफ़ी बेअदबी से बोली। इब्राहिम शराजी, उनकी बीवी रेहान, अफनान और साकिब के साथ तमाम लोग जो इस वक्त हॉल में नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। हवाइयाँ उड़ते चेहरों के साथ महविश को तो कभी कामती हूर को देखने लगे। "ये क्या कह रही हो महविश? होश में तो हो? जानती हो कि तुम जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रही हो वो इस घर की इज्जत, इसके मान को कभी ठेस नहीं पहुँचा सकता। ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है।" इब्राहिम शराजी गुस्से की सुर्खी लिए सख्ती से बोले। सबकी नज़रें कभी महविश पर तो कभी बराबर में डरी सहमी खड़ी हूर पर जा रही थी। "मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ बाबा, पूछें इससे। मैंने खुद इसे यज़दान के कमरे से अपनी बिखरी हालत को ठीक करते निकलते हुए देखा। पूछें, अगर मैं झूठी हूँ तो इसने खुद एतराफ़ किया है अपना गुनाह का। आप सब भी पूछें।" महविश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जबकि आवाज़ का शोर सुनकर अंदर सोया यज़दान भी अब घबरा कर बाहर आ गया, लेकिन कुछ ना समझते हुए अब वो सबकी नज़रें खुद पर ठहरता देख कन्फ्यूज्ड हो गया। "बस महविश, बहुत हो गया। तुम मेरी पाकबाज बाकरदार बाहया बेटी पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकती। मुझे अपनी हूर पर पूरा यकीन है।" अब के साकिब चुप ना रह सके तो वो गुस्से से बोले, जबकि आमना बेगम मुँह पर हाथ रखती रोने लगी। "हूर, बताओ बेटा, बात क्या है?" रेहाना बेगम उसके पास आती प्यार से उसकी पीठ थपथपाते बोली, "मेरी बच्ची, क्या जो महविश कह रही हैं वो सच है?" हूर, जो अपनी हिचकियों से रो रही थी, गुलाफी आंखें उठाकर सामने एक नज़र पीले जर्द पड़ते ही यज़दान के चेहरे को देखकर बोली, "दादी जान, मैं गलती से यज़दान भाई के कमरे में जाकर सो गई थी। यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं।" तभी यज़दान, जिसको इस सूरत हाल का अभी ठीक अंदाज़ा नहीं हुआ था, हूर की बात सुनता सब समझ गया। तभी गजब से गजबनाक होता बोला, "ये आप लोग किस किस्म की हूर से सवाल कर रहे हैं? बच्ची है वो, अभी नासमझ है, गलती से मेरे रूम में आकर सो गई तो आप लोगों ने उसे मुजरम करार दे दिया। जिस मासूम को कुछ अक्ल समझ नहीं, उस पर आप लोगों ने बहतान लगा दिया।" यज़दान भी अब सबके बीच आता अपने हक पर चीख उठाता, "देखो बेटा यज़दान, मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई शक नहीं। मैं जानती हूँ ये लड़की ही तुम्हें अपने जाल में फंसाए।" महविश भी इतना ही बोली थी। आमना, जो कब से महविश रो रही थी, तेज़ आवाज़ में बोली, "बस महविश, एक और लफ्ज़ नहीं मेरी हूर के लिए, वरना मैं सब भूल जाऊंगी।" इब्राहिम शराजी अब चुप ना रह सके, जब रोबदार आवाज़ में बोले, जो भी हुआ हो, गलती किसी की हो या ना हो, इसका हर हाल यही निकलता है कि यज़दान हूर की पाकीज़ा ज़िंदगी पर हर्फ तो आया है, जबकि मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बहुत नेक और इज़्ज़तदार ख़ानदान का खून है। वो ख्वाब में भी ऐसा कुछ करने का सोच नहीं सकता, लेकिन अब इसे हूर के लिए, खुद के लिए, सबकी नज़रों में वही इज़्ज़त वक़ार बरकरार रखने के लिए हूर के साथ निकाह करना होगा। इसे ये कुर्बानी देनी होगी, नहीं तो कोई भी हूर को अपनाएगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बेकसूर गुनाह की मरतकब ठहराई जा रही है। इसलिए तुम्हें ही अब इसका साथ देकर इसे इस इल्ज़ाम से बरी करना होगा। हूर को शायद ही अब कोई अपनाए, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बदनाम हो चुकी है। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। इब्राहिम शराजी आंखों में नमी लिए यज़दान की तरफ देखते उम्मीद से बोले थे। यज़दान तो सन्नाटों की जद में जैसे मुजस्समा बन खड़ा था। वहीं महविश, जो अचानक बाजी के पलट जाने पर हल्कलाती हुई बोली, "अरे बाबा जान, निकाह ऐसे कैसे? यज़दान इस बदकिरदार लड़की से निकाह कर लेगा? ये ज़रूर इसे फंसा रही है।" "चुप हो जाओ महविश।" इब्राहिम शराजी महविश की बात पूरी होने से पहले ही दाड़े, "ये सब तुम्हारी लगाई आग है। अब बात सर से ऊपर जा चुकी है, जिसका आरी हल यही है, इज्जत से निकाह कर दिया जाए ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें।" मैं भी सुकड़ते दिल से बाप का आरी हुक्म सुन रही थी। ये उन्होंने क्या कर दिया था? वो तो ये गुमान कर रही थी कि हूर को बदनाम करके यज़दान की नज़रों में गिराकर अनाबिया की अहमियत बढ़ाएगी, लेकिन अब तो वह यज़दान को खुद अपनी बेटी के नसीब से मिटाने का सामान कर बैठी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन दादा जान, हूर बहुत छोटी है मुझसे, मैं कैसे उससे निकाह कर सकता हूँ? बच्चों की तरह समझता हूँ मैं इसे। खुदा के लिए हमारे रिश्ते की ऐसी तजलील ना करें। यज़दान बेबसी से बोला, "वक्त के साथ अक्ल समझ आ जाएगी। निकाह करना जुर्म नहीं, शरीयत में
इजाज़त है कज़न से निकाह करना, बहन कहने से कोई बहन नहीं बन जाती। और उम्रों का क्या है, 10-12 साल का फ़र्क तो अम्मा अब्बा की उम्रों में भी है। देखो कितनी मिसाली ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह का नाम लेकर ये नेक काम जल्द ही सर अंजाम दें। साकिब ये कहते खड़े हुए और अंदर चले गए। ये ज़दान ने काफ़ी देर तक सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबका शायद यही आखिरी फ़ैसला था। अफनान भी इस पल खामोश थे। क्या कहते? आहर आहर जब सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुके थे, हूर आंखों में आंसू लिए बेकसूर होकर भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। और फिर इब्राहिम शराजी ने यह फ़ैसला किया कि महरू के ठीक वलीमे के 1 हफ्ते बाद यज़दान और हूर का निकाह किया जाएगा, तमाम रस्म व रवाजों के साथ, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमने बच्चों के गुनाह को छुपाने की कोशिश की है। जिस तरह से महरू की शादी में कोई कमी नहीं रही, इसी तरह मेरी बच्ची हूर और यज़दान की शादी में भी कोई कमी नहीं रहेगी। इस मौजू पर अब और मज़ीद कोई बहस ना सुनो, मैं सब कान खोल कर सुन लो और शादी की तैयारियां शुरू करो। ये कहते इब्राहिम शराजी अपने कमरे में चले गए। अब तो उनके आगे किसी की हिम्मत ना थी जो सवाल जवाब करता। आमना बेगम हूर को लेती अंदर बढ़ गईं। आसिया और रेहाना बेगम को तो जैसे चुप लग गई थी। तमाम मेहमान जो घर भर में आए थे तो ये तमाशा देखते अंदर ही अंदर चैम गोइयाँ करते अपने अपने कमरों में चले गए। यह ज़दान जो हून हार नज़रों से महविश को देख रहा था, इसका बस नहीं चल रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। तभी शहरयार आगे बढ़ता, भाई को संभालता उसे उसके कमरे में ले गया। महविश तो सदमे से अपनी जगह बर्फ़ की तरह जमी खड़ी थी। कितनी आराम से उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी के नसीब का हीरा हूर की झोली में फेंक दिया था। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि वो दिल पर पत्थर रखकर यज़दान और हूर की शादी होता देखती। अम्मी आपने ये क्या किया? कम से कम मेरा ही ख्याल कर लेती। किस बेकसूर पर बिना तस्दीक के इतनी बड़ी तोहमत लगाते आपको ज़रा मेरा ख्याल नहीं आया? अनाबी आंखों में ढेरों आंसू लिए माँ के करीब आती बेहद आहिस्ता मगर दुख भरी आवाज़ में बोलती चली गई। अब वो माँ से ये तो कह नहीं सकती थी कि बेटी की मोहब्बत पर उसकी अपनी माँ ने डाका मारकर उसकी खुशियों को खा गई। हूर कमरे में आते ही मुँह आमना के गले लगती रो दी। अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम मासूम हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आमना भी अब उसके साथ रो रही थी। तभी यज़दान वहाँ आया। गुड़िया के साथ ज़बरदस्ती ना करें, मैं सबको समझा दूंगा, मैं खुद इससे निकाह के खिलाफ हूँ। अजियत से हूर को देखता यज़दान कुरब से बोला, मेरी बेटी ज़माने भर में तुम्हारे नाम से तो बदनाम हो गई है, कौन अपनाएगा इसे? सबको समझाने से बेहतर है हूर को खुशी से अपना लो, इसे अपने नाम की इज्जत की चादर ओढ़ा दो। ये एक माँ की तुमसे गुजारिश है। अमना का लहजा भीगा हुआ था। यज़दान तो अमना को खुद के सामने भीख मांगता देख दंग रह गया। जब आगे बढ़ता वो उनके हाथ थाम कर सर झुका गया। उसके लिए मजीद जहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। तभी वहाँ से निकलता चला गया। भाई ये आपके कपड़े हैं, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाएं। यज़दान बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था अपने कमरे में। जब शहरयार उसके कमरे में आता बोला, ठीक है 1 हफ्ते बाद आज हूर और यज़दान का निकाह जो था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यज़दान ने सरसरी सी निगाह इन कपड़ों पर डाली। वो समझ गया था कि नए कपड़ों तक का भी बंदोबस्त हो गया है। ज़रूरत क्यों नहीं थी, चाहे हालात जैसे भी हों, पर दिन तो बड़ा है ना, इसलिए जल्दी से ये पहन कर तैयार हो जाएं और सब अल्लाह पर छोड़ दें। शहरयार संजीदगी से कहता भाई को गले से लगाता चला गया। बहुत प्यारी लग रही हो, बस प्लीज़ रोना नहीं, वरना मेरी मेहनत से क्या किया गया आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। निमरा और महरू ने दुल्हन के लिबास में बैठी हूर को देखकर मुस्कुराकर कहा, जिसकी आंखों में आंसू और गालों पर भी हल्की सी नमी थी, क्योंकि जाने कितने आंसू वो मेकअप के दरमियान बहा चुकी थी। अनाबिया गहरी संजीदगी लिए चुपचाप हूर को देख रही थी। इसका दिल इस वक्त यहाँ से भाग जाने को चाह रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। हूर अपने कपकपाते हाथों को काबू करने की कोशिश करती गमीन शक्ल बनाए महरू और निमरा को देखने लगी। चुनरी उड़ाओ, निकाह का पूछने आ रहे हैं। तभी आमना, आसिया, महविश और बाकी तमाम खवातीन कमरे में दाखिल होती बोली। तो दोनों ने जल्दी से हूर को बेड पर बिठाया और अच्छे से चुनरी उसके सर पर उड़ाई। हूर के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हुई थी। कोई भी राह फरार ना पाकर उसने बेदारी से अपने आंसू पूंछे तो कमरे में उसकी चूड़ियों की खनकार गूंज रही थी। जब भी वहाँ निकाह हवा के साथ तमाम मर्द हजरात भी कमरे में आए तो खवातीनों ने अपने सरों पर अच्छे से दुपट्टा ले लिया। निकाह हवा ने जैसे कलमात पढ़ाने शुरू किए, ठीक वैसे हूर को अपने दिल की हालत अजीब होती महसूस होने लगी। निकाह हवा ने जैसे उससे उसकी रजामंदी पूछी, वो गायब दिमागी से चुप बैठी रही थी। तब रेहाना बेगम ने आगे बढ़कर प्यार से उसे सीने से लगा लिया। कबूल है। हूर अपनी आंखों को जोर से बंद करते कपकपाए लहजे में बोली। जब सब यकबार एक दूसरे को मुबारक देने लगे, सबके चेहरे खुशी और मसरत से जगमगा रहे थे। अब सब बाहर की तरफ आए, जहाँ यज़दान सपाट चेहरे के साथ बैठा था। थोड़ा मुस्कुरा लें भाई, गुड़िया ऐसे देखेगी तो मजीद डिसहार्ट होगी। पास बैठे शहरयार ने इसको देखकर समझाने की गर्ज से कहा। यज़दान कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पाया, क्योंकि निकाह हवा अब उससे रजामंदी पूछने आ रहे थे। पल पल मरा हुआ मैं सोचा तक नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। यज़दान
ने निकाह हवा को कलमात पढ़ाते सुना तो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया जो शायरिया ने बाखूबी सुना था, कबूल है। निकाह हुआ के पूछते पर यज़दान ने संजीदगी से बोलकर अपनी रजामंदी दे तो दी तो दुआ के बाद मुबारकबाद का शोर उठा। हर कोई यज़दान की तरफ आता, गले मिलकर उसे को मुबारकबाद पेश कर रहा था। अब रिश्ता जोड़ा है तो पूरी ईमानदारी से निभाना है। इब्राहिम शराजी उसके गले लगते प्यार से उसे समझाते बोले, जिस पर वो नज़रें नीचे झुका गया। निकाह के फौरी बाद हूर की रुखसती भी हो गई थी। इसको यज़दान के कमरे में लाकर बिठाया गया तो वो कमरे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट था। ऐसे लग रहा था जैसे पसंद की शादी हो। हूर कमरे को चारों तरफ देखती महरू को देखने लगी। ये सब पूछना चाहती हो कि ये सब क्या है? ये सब शहरी बाई का कारस्तानी है। कह रहे थे शादी जिंदगी में एक बार होती है, सेलिब्रेट करना तो बनता है, बड़ा भाई है। महरू कांधे चुकाती मुस्कुराती बोली। हूर कुछ ना बोली। अच्छा तुम यही बैठो, यहाँ खाना पड़ा है, मैं भाई को भेजती हूँ, दोनों खा लेना। नहीं खाया खाना, मुझे यकीन है तुमने भी नहीं खाया होगा, महरू ने कहा तो हूर की नज़रें सोफे के पास पड़ी शीशे वाली टेबल पर गई, जहाँ टेबल के चारों तरफ फूल बिखरे पड़े थे और कोनों में मोमबत्तियां जल रही थी, जबकि सोफे के दरमियान फूलों की पत्तियों से हार्ट बनाया हुआ था। ये सब देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, पर उस वक्त हूर के अंदर जैसे सारे एहसास मर चुके थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। महरू के कमरे से निकल जाने के कुछ वक्त बाद हूर को एहसास हुआ कि उनकी शादी ये नॉर्मल शादी नहीं थी, इसलिए उसको ऐसे बैठना नहीं चाहिए। ये ज़दान को ऐसी कोई चाह नहीं होगी, हो सकता था उसके मजीद नागवार गुजरे ये सब। शरारा अच्छे से संभाल कर वो बेड से नीचे उतरने लगी। जब भी दरवाज़ा खोल कर यह ज़दान कमरे में दाखिल हुआ, उसको लोग लगातार देख कर हूर का दिल खौफजदा हुआ। माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। बैठ जाओ, ऐसे खड़ी क्यों हो? बिना उस पर एक नज़र डाले यह ज़दान उसे कहता ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा हुआ तो होश में आती हूर इसके पुश्त देखने लगी, जो अपनी घड़ी उतार रहा था। वो इसको इग्नोर कर रहा था। वो सोगवार हुस्न लिए कितनी खूबसूरत लग रही थी और जिसके लिए इसको तैयार किया गया था उसको इग्नोर कर रहा था। ये काफ़ी था कि उसको सर तक पैर तक पाने के लिए अब शेरवानी एक तरफ फेंक कर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। जब हूर ने दुख से सोचा कैसे अपने अमल से बता रहे हैं कि हम इनके साथ ज़बरदस्ती ब्याही गई हैं, गले से हार खींच कर उतारती हुए दुख से सोचने लगी। जब उसकी सोचों से ताल्लुक यज़दान वॉशरूम जा चुका था। 10 मिनट बाद जब वो वापस आया तो हूर अपना मेकअप रिमूव कर चुकी थी। ज्वेलरी उतारने के बाद वो अपना दुपट्टा साइड पे करने वाली थी, जब यज़दान को वो वापस कमरे में आता देख उसने जैसे तैसे करके कंधों पर उड़ा, यहाँ आओ। चेंज करने के गर्ज से वो भी वॉशरूम जाने वाली थी, जब यज़दान की संजीदा पुकार पर उसके पाँव को ब्रेक लगी। जी। हूर हैरत ज़दा सी इसको देखने लगी, जो सोफे पर बैठा उसको अपने पास आने की दावत दे रहा था। जी आप? यज़दान ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, जो ट्रेडिशनल शरारे में मुलबुस मिटे मिटे मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। खाना खाया है? जब हूर ने मासूमियत लिए चेहरे से अब सिर्फ ना में सर हिलाया, यज़दान ने बड़ी मुश्किल से अपने मुस्कुराहट को ज़ब्त किया, फिर मसनूई संजीदगी से बोला, आ जाओ खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इतना बोल यज़दान ने नवाला तोड़कर इसके मुंह के सामने किया। हूर ने शर्माते हुए पहले तो उसके हाथ को देखा, फिर आगे बढ़ती आहिस्ता से नवाला उसके हाथ से खा लिया। मैं जानता हूँ ये शादी आप करना नहीं चाहती थी और मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, पर कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैं कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने नहीं दूंगा। ये शादी आपके लिए बेड़ियाँ नहीं बनेगी। आप पहले अपनी स्टडी मुकम्मल करें, उसके बाद हम सोचेंगे कि इस रिश्ते को किस मोड़ पे लेकर जाना है। जो हुआ आप भूल जाएं, हम पहले की तरह रहेंगे। आप जैसे मेरे साथ पहले हुआ करती थी वैसे रहिएगा। मैं कभी टिपिकल मर्द की तरह शोहर बन जाने के बाद बिला वजह आप पर अपना तसल्लुत नहीं जमाऊंगा। यज़दान बोलता जा रहा था और वो साए साए करते दिमाग के साथ उसको बोलता देखने लगी। उसके बाद हूर वॉशरूम से जब ड्रेस चेंज करके वापस आई तो देखा यज़दान करवट के बल लेटा हुआ था। कमरे की डिम लाइट ऑन होने की वजह से वो जान नहीं पाई कि सो गया था या जाग रहा था, लेकिन सोने से पहले उसने फूलों को बेड पर से हटा दिया था। मोमबत्तियां भी अब बुझी हुई थी। वो भी बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। उसकी आंखें बंद करने की देर थी और नींद ने इसे पूरी अपनी गोश में ले लिया। एक तो बहुत दिनों से नींद उसकी पूरी नहीं हुई थी, दूसरा ये कमरा और बेड उसके लिए नया नहीं था। तभी आराम और सुकून के साथ इसको नींद आ गई। दूसरी तरफ यज़दान जो जाग रहा था, उसकी गहरी होती सांसों का अंदाज़ा लगा गया कि सो गई है। तभी करवट उसकी तरफ लेता उसका चेहरा देखने लगा, जहाँ सोते हुए इसके चेहरे पर अजीब सुकून और इत्मीनान था। आज निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद पहली बार वो उसे नए हक से देख रहा था। उसका दिल एक पल को हूर को देखकर ज़ोर से धड़का। वो इतनी हसीन और मासूम लग रही थी कि यज़दान खुद को इसके लिए ऐसे सोचने पर रोक न सका। शायद ये निकाह की ताकत थी जब उसे हूर के लिए सोचने पर मजबूर कर गई। वो अब उसकी बीवी थी और हक से उसके साथ सो रही थी। यह एहसास ही बहुत हसीन था। उस पल उसके जज्बात एहसास हर एक के लिए थोड़े से बदले थे। ये ज़दान ने उसके चेहरे पर आए बालों को प्यार से हटाया, फिर खुद भी आंखें मूंद कर सो गया। सुबह हूर और ये ज़दान ने
नॉर्मल दिनों की तरह सबके साथ मिलकर नाश्ता किया, फिर रोज़मर्रा की तरह अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो गए। महविश और अनाबिया बुझे चेहरों से ये सब देखती पर बर्दाश्त ही कर सकती थी। बाकी घर वाले जैसे ही इस सब से मुतमईन नज़र आ रहे थे। आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी पुराने डगर पर चलने लगी। हूर कॉलेज जाने लगी और याज़दान वही दिन भर कारोबार में मसरूफ़। जब घर आता तो रात गए देर से। जहाँ हूर हवा खरगोश के मज़े ले रही होती, वो भी थका हारा फ्रेश होता उसके साथ ही एक तरफ लेट जाता। मेरी वैन चली गई, अब मैं किसके साथ कॉलेज जाऊंगी। रोनी सूरत बनाती वो वापस हवेली आई थी, जहाँ याज़दान ऑफिस के लिए तैयार हुआ। गाड़ी में बैठता बस निकलने ही वाला था जब हूर को वापस आता देखा, उसके करीब आया। हूर, क्या हुआ, तुम कॉलेज नहीं गई? मैं लेट हो गई याज़दान भाई। हूर बेखबरी में अभी इतना ही बोली थी जब याज़दान उसके भाई कहने पर लालसुर हो गया। फिर गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, शट अप, खबरदार जो फिर कभी भाई बोला तो अब से मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। वो ज़हमी शेर की तरह दौड़ा था। हूर तो इस पल इसके गुस्से से सहमती 2 कदम पीछे हुई। वो यूं गुस्सा होगा हूर ने कभी सोचा भी नहीं था। सॉरी हूर, मुझे गुस्सा आ गया था, माफ़ी मांग रहा हूँ। आगे बढ़कर उसको अपने हसार में लेता याज़दान शर्मिंदा लहजे में बोला, जो अब जवाब में हूर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ी होती आंसू बहाने लगी। रोए मत, मुझे तकलीफ होती है आपके रोने से। याज़दान ने प्यार से उसके आंसू साफ किए तो वो सिसकी। अच्छा, आज से मैं अपनी हूर को कॉलेज खुद छोड़कर आया करूँगा। उसके सर अपने सीने पर रखता याज़दान उसको चुप करवाने की खातिर बोला तो हूर का वजूद साकत हुआ था। वो रोना भूलकर हैरत से अपना सर उठाई याज़दान को देखने लगी। आज पहली बार याज़दान ने उसे गुड़िया की बजाय नाम से पुकारा था। चलो आओ। याज़दान प्यार से उसे गाड़ी में बिठाता कॉलेज छोड़ने आया था। अनाबिया और महविश अपनी सारी तैयारी मुकम्मल किए कमरे से बाहर आती सबसे मिलने लगी। आज उनकी वापसी थी। शहरयार बाहर खड़ा गाड़ी के पास उनका इंतज़ार कर रहा था। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद शहरयार ने नाबिया से कोई बात नहीं की थी। उसका दिल भी अपने भाई की वजह से थोड़ा बुझा बुझा सा था, और फिर पोपो ने जो तमाशा लगाया था उस सब के बाद शहरयार इनसे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहने लगा। लेकिन अब जब वो वापस जा रही थी तो शहरयार का दिल उदास हो गया था। सबसे मिलने के बाद वो दोनों बाहर आती गाड़ी में बैठी। जब शहरयार की नज़रों ने बैक मिरर से नाबिया के गमज़दा चेहरे को देखा, इसका दिल चाहा वो इस पल नाबिया की तमाम उदासियां खुद में समेटकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे। उसकी माँ की गलती में अनाबिया का तो कोई कसूर नहीं था, फिर वो क्यों फूफो की गलतियों की वजह से उदास और गम में थी। शहरयार दिल में सोचता गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब इसी असना में एयरपोर्ट भी आ गया। फूफो से अलविदाई कलमात कहने के बाद शहरयार ने मौका देखते नाबिया से कहा, आप उदास मत हो नाबिया, ऐसा इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं, मैं आपको उदास नहीं दे सकता। बहुत जल्द आऊँगा आपका हाथ फूफो से मांगने। शहरयार चाहत से नाबिया के धुआं होते चेहरे को देखता बोला, फिर एक खूबसूरत से डिब्बी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता बोला, ये अंगूठी मैंने आपके लिए ली है। अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल है तो इसे पहन लीजिएगा, वरना मैं समझ जाऊंगा आपको मेरी मोहब्बत कबूल नहीं। शहरयार संजीदगी से कहता उसके हाथ में वो अंगूठी देता जाने लगा। अनाबिया तो नाम आंखों से दूर जाता देखती रही। इसने सोचा भी नहीं था कि उसके रब ने यह ज़दान जैसे इंसान को उससे इसलिए छीना था क्योंकि वो इसे इतने प्यारे इंसान की मोहब्बत से नवाजना चाहता था। नाबिया रोते रोते भी हंसती जब वो खूबसूरत अंगूठी निकाल कर उंगली में पहनी। वो शहरयार को देख रही थी। जब शहरयार ने पलट कर आखिरी निगाह इस पर डाली तब अनाबिया ने हाथ उठाकर अपनी उंगली में सजी इसकी अंगूठी से दिखाई, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई जहां महविश उसका इंतजार कर रही थी। शहरयार तो फटी आंखों से एक पल को देखता देखता ही रह गया कि उसकी मोहब्बत कबूल कर ली गई थी। जब वो खुद से बेयकीनी से बोला, फिर बेपनाह खुश होता वापस आने लगा। अब उसे अपनी और नाबिया के आने वाली खुशियां भरी जिंदगी के लिए दादा जान से बात करनी थी। याज़दान थका हुआ रात गए कमरे में दाखिल हुआ। जब हूर को अभी तक जागता देख हैरान रह गया। हूर, आप अभी तक सोई नहीं? हैरत से पूछा। हूर को इस पल जागता देख एक अजीब सी खुशी मिली थी। याज़दान को जैसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। जी, मैं पढ़ाई कर रही थी तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हूर अब किताबें समेटती सोने की तैयारी करने लगी। हूर, क्या एक कप चाय मिलेगी? बहुत थक गया हूँ। बेहद आस भरी निगाहों से वो इसके मासूम से चेहरे को निगाहों में बरता बोला, अभी लाई। जब हूर मुस्कुरा कर उठती बोली, फिर ठीक है। कुछ देर बाद गर्म चाय का कप हाथ में ली वो अंदर आई, जहाँ याज़दान आहिस्ता आहिस्ता अपने सर उंगली से दबाता आंखें मूंदता लेटा था। क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? हूर फिक्रमंदी वाले तासुरात पर चेहरे पर सजाती धीमी आवाज में पूछने लगी। जब याज़दान ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए से देखा, उसकी सुर्ख आंखें देखते हूर को एहसास हुआ। जब आगे बढ़ती बेख्तियार वो नरम हाथों उसके सर को दबाने लगी। याज़दान उसकी इस अदा पर फिदा होता आहिस्ता से उसकी कलाई थाम गया, फिर उसके बराबर बैठता बोला, बस हूर, दर्द में आराम आ गया इतनी जल्दी? अभी तो मैंने ठीक से दबाया भी नहीं। वो आंखों की झपकती मासूमियत से बोली, आप इतनी नरमी से सर दबाएंगे और इतना ख्याल रखें? दर्द ने तो दूर भाग ही जाना है। याज़दान बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता बोला,
خیال کیوں نہ رکھوں؟ حور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عادت پڑ جائے گی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر جواب دیا تو اپنے اس ہاتھ کو دیکھ کر حور نے یزدان کو دیکھا جس کا شاید یہ پسندیدہ کام تھا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پڑ جانے دیں عادت۔ حور آرام سے بولی۔ عادت جان لیوا ہوتی ہے۔ یزدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہو جانے دیں اب اس ڈر سے، میں آپ کا خیال رکھنا تو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ آپ کو میری فکر ہوتی ہے حور؟ اب کہ یزدان نے اپنی ناک اس کے ناک سے مس کرتے بڑی لگاوٹ اور معنی حیثی سے پوچھا۔ جب حور اپنی ناک سہلاتی بولی۔ دانی آپ کی ناک تو بہت ٹھنڈی ہے۔ حور نے جو کہا وہ سن کر یزدان پہلے تو بہت حیران ہوا لیکن پھر کہکا لگا دے جو ہنسنے لگا۔ حور کافی تعجب سے اس کو اتنا ہنستا دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ اتنا ہنس رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر حور نے پوچھا جس کی ہنسی اب تک تھمی نہیں تھی۔ شوہر ناچیز اپنی بیوی سے رومانس بھی نہیں کر سکتا؟ یزدان نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یزدان کو اس کا دانی کہنا دل کو باغ باغ کر گیا تھا۔ جب وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے چائے اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی جس پر یزدان ایک بار پھر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اب کے حور کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ دادا جان مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہریار ابراہیم شیرازی کے کمرے میں آتا انہیں تنہا بیٹھا دیکھا تو بولا۔ ہاں بیٹا آؤ کہو کیا بات ہے؟ ابراہیم شیرازی سیدھا ہوتے اخبار ایک طرف رکھتے اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہوئے بولے۔ دادو وہ مجھے دراصل اب کے شہریار گلا کھنگارتا کنفیوز ہونے لگا۔ بولو بیٹا شہریار کیا بات ہے؟ ابراہیم پیار سے بولے۔ دادا مجھے نابیہ پسند ہے، آپ بابا سے ہی بات کریں۔ شہریار اب شرماتے ہوئے دل کی بات زبان پر لاتا بولا۔ باقی لوگ کون سے؟ ابراہیم اور یزدان ہی تھے جن سے شہریار کھل کر بات کر لیا کرتا تھا۔ یزدان سے کہہ نہیں سکتا تھا، ان دنوں وہ بہت مصروف تھا اس لیے ابراہیم کو بتانا مناسب سمجھا۔ وہ گھر کے بڑے بھی تھے۔ شہریار کی بات اچھے سے سمجھتے وہ مسکرا دیے۔ اچھا تو برخوردار کو محبت ہو گئی ہے، اب انہیں بھی شادی کرنی ہے؟ ابراہیم اسے چھیڑتے ہوئے بولے جس پر شہریار ہنس دیا۔ بات کرتا ہوں عفنان سے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب گھر بسا دو اس کا بھی، یزدان کے ولیمے کے ساتھ اس کا بھی ولیمہ کر ہی دو۔ دادا جان مذاق کرتے آخر میں سنجیدگی سے بولے۔ یزدان کے ولیمے کو ابھی سب نے کچھ وقت دیا تاکہ وہ اور حور ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے اس رشتے کو وقت دے سکیں، پھر ہی ولیمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اب شہریار کی خواہش جان کر ابراہیم شیرازی نے سوچا کیوں نہ اس کی شادی کر کے ولیمہ دونوں کا ایک ساتھ کر دیں، خاندان بھر میں سب کے سامنے برہم بھی رہ جائے گا۔ اور پھر جب عفنان سے اس موضوع پر بات کی ابراہیم نے تو وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کیا اعتراض ہوتا؟ ہاں البتہ یزدان نے پھپھو کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ان سے ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے حور اور اس کے کردار پر خاندان بھر میں انگلیاں اٹھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اور حور کے اس رشتے پر شرمندہ تھا، وہ تو اب حور سے محبت کرنے لگا تھا۔ حور بھی تو ہر دم اس کا خیال رکھتی، اس کے ارد گرد گھومتی، اس کی فکر کرتی، دونوں کو اب جیسے ایک دوسرے کے وجود کی عادت ہونے لگی تھی۔ لیکن یزدان اس کی کم عمری دیکھتا اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور پر شوہر ہونے کا تسلط جما کر وہ اسے خود سے دور کر دے، اس لیے وہ حور اور خود کو تھوڑا وقت دے رہا تھا تاکہ حور اس کو مزید قریب ہو کر خوشی سے اس رشتے کو قبول کر سکے۔ عفنان ان کی فیملی ابراہیم اور ریحانہ بیگم کے ساتھ مل کر رمیز خان کے گھر آئے تھے انابیہ کا ہاتھ مانگنے، جبکہ ثاقب اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ یزدان کو نہ آتا دیکھ مہوش بہت دکھی ہوئی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر وہ اندر ہی اندر احساس ندامت سے دوچار تھی۔ پھر کیا تھا؟ رمیز خان جان گئے تھے کہ یزدان سے تو اب نابیہ کی شادی ممکن نہیں، لیکن شہریار بھی کسی طور پر کم نہیں تھا، اس لیے جب انہوں نے نابیہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ شرما کر سر جھکا گئے، جس پر رمیز خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سب سے بولے۔ بھائی مبارک ہو، لڑکی نے رضامندی دے دی ہے، یہ رشتہ اب پکا سمجھو۔ ان کے اس کہنے پر سب ہنسنے لگے۔ پھر ٹھیک 2 مہینے بعد ابراہیم شیرازی اور عفنان شیرازی نے رمیز خان سے کہا کہ وہ آئیں گے اور دلہن بنا کر انابیہ کو رخصت کر کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے چلنے لگی۔ حور، مہر و نمرہ سبھی بہت خوش تھی۔ انابیہ جو ہمیشہ کے لیے یہاں آ جانے والی تھی، ایک نئے رشتے میں بند کر شہریار کی خوشی دیکھتا یزدان بھی بہت خوش تھا۔ اس نے شادی کے لیے حور کو ہر ایک چیز اپنی پسند سے دلائی۔ ایک بار پھر شیرازی حویلی میں خوشیوں کی رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا، گانے بجانے، لڑکیوں کا شور و غلہ، گھر بھر کی تیاریاں، کھانا پینا سب عروج پر چل رہا تھا۔ جب شادی سے کچھ دن پہلے مہوش اچانک رمیز خان کے ساتھ حویلی چلی آئیں۔ ارے مہوش آئی ہیں؟ ابراہیم ریحانہ بیگم کے ساتھ گھر پر انہیں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یزدان حور بھی کمرے سے باہر آتے ایک طرف کھڑے تھے، انہیں دیکھنے لگے۔ میں جانتی ہوں آپ سب اچانک مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں گے، جب آپ سب تو خود آنے والے تھے، لیکن میں یہاں ایسے ہی نہیں آئی۔ ثاقب آئی، یزدان، حور اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس دن جو تہمت میں نے یزدان اور حور پر لگائی تھی، اس دن کے بعد سے میں ایک پل چین کا نہ جی سکی۔ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے سکون نہیں ملتا۔ اب تو میری بچی اس گھر میں آنے والی ہے، میں نہیں چاہتی کوئی اپنا دل میری بیٹی یا میری وجہ سے دکھی رکھے۔
میں ہاتھ جوڑ کر یزدان سے اور حور سے معافی مانگتی ہوں۔ میں وش آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ندامت لیے بولی تو یزدان آگے بڑھتا انہیں ان کے ہاتھ تھام گیا۔ جو بھی ہوا پھوپھو، میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے اب کوئی گلہ نہیں۔ مجھے تو آپ نے سچ کی جنت کی حور دے دی جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ یزدان مسکرا کر دل صاف کرتا آخر میں شرارت سے حور کی طرف دیکھتا بولا جو آنکھوں میں آنسو لے گئے یزدان کی بات پر ہنس دی۔ یزدان کی بات سن کر سب کے دلوں میں جیسے سکون اتر آیا۔ ویسے بھی شادی کے بعد اس کے چہرے کی چمک اور خوشی ہی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ حور اور اپنے رشتے کو دل سے قبول کر گیا۔ سب نے مہوش کو معاف کر دیا تھا جس پر وہ خوش ہوتی ڈیر و اطمینان دل میں لیے واپس چلی گئیں۔ اب وہ اپنی بچی کو بنا دل پر کسی بوجھ کے سکون سے رخصت کر سکتی تھی۔ یزدان روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ایک ضروری کام کر رہا تھا جب حور وہاں آتی اس کے برابر بیٹھی عجیب بے چینی کا شکار دکھائی دینے لگی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یزدان اس کے یہ کیفیت سمجھتا لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتا اس کا ہاتھ تھامتا وہ بولا کیا بات ہے حور، کچھ کہنا ہے؟ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر حور جھجکتی ہوئی بولی دانیہ آپ نے نیچے سب کے سامنے جو کہا کیا سچ تھا؟ یزدان سمجھ گیا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی، تبھی اسے تنگ کرتا مزید اس کے قریب ہوتا بولا میں نے نیچے تو بہت کچھ کہا تھا میری جان، آپ کس سچ کی بات کر رہی ہیں؟ ذرا کھل کر بتائیں تاکہ میں اپنے عمل سے آپ کو اس کی وضاحت دے سکوں۔ بظاہر تو وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا لیکن آنکھوں سے جل کی شرارت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ یہی کہ آپ مجھ سے محبت، نظریں جھکائے گھبراتے ہوئے اپنے ٹوٹے لفظوں سے اتنا ہی بولی جب یزدان کو اس کے ایکٹ پر جی بھر کے پیار آیا تھا۔ مائی انوسینٹ بچہ، بے اختیاری کی کیفیت میں یزدان کی طرف آتا اس کے ماتھے پر پہلا اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑتا ہوا حور کو جھکا سر مزید جھک گیا۔ تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیے یزدان نے افسردگی سے کہا ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری حور میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں دانی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بغیر اب میں نہیں رہ سکتی۔ نیچے نظریں جھکائے اس نے صاف دل سے کہا آپ کو اب میں خود سے کبھی دور کروں گا بھی نہیں۔ یزدان نے نرمی سے کہا اب یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ مجبوری کے تحت مجھ سے نارمل رویہ رکھا، ایک بار بھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ آپ ناخوش ہیں؟ حور نے نم آنکھوں سے کہا تو یزدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھر لیا۔ میں ناخوش کبھی نہیں تھا، مجھے بس لگتا تھا آپ خوش نہیں رہیں گی میرے ساتھ، جس طرح میں نے ہم دونوں کو ایسے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیک آپ نے بھی تو نہیں سوچا ہوگا نا؟ یزدان بولا تو وہ کچھ بول نہیں پائی، بس خاموشی سے اس کو بولتا دیکھنے لگی۔ میں آپ سے شادی کرنے سے نہیں ڈرتا تھا، اس خیال سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ یزدان نے مزید کہا دانی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے آپ نے کبھی بیوی تسلیم ہی نہیں کیا اور نہ شوہر ہونے کی حیثیت سے کبھی مجھے دیکھا۔ آپ کی نظریں میں تو اب بھی میں آپ کی گڑیا ہوں۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں پوری طرح دیکھتی صاف گوئی سے بولی جب یزدان ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا اس کا مفہوم سمجھتا پیار سے اسے سینے میں برتا مسکراتا گویا ہوا اچھا تو آپ کو ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے پھر اب مجھ سے گلہ مت کیجیے گا بیگم صاحبہ، کیونکہ میری محبت کی شدت ہی اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی آپ برداشت کر سکیں۔ اس کے کان کے قریب مخمور لہجے میں سرگوشی کرتا وہ حور کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا جبکہ وہ ڈر کے بے اختیار اس سے دور ہونے لگی۔ جب یزدان نے اپنی مضبوط باہوں میں قید کرتے اسے فرار ہونے کے لیے کوئی راہ نہ چھوڑی، اب حور کے پاس اس کی شدت سہنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا، اس لیے خوشی سے اپنے احساس، جذبات، روح سب اس کے حوالے کرتی آج وہ پوری طرح سے اس کی ہو گئی تھی۔ وہ بھی تو اس کی چاہت، اس کی محبت کا طلبگار تھا، کتنا تڑپتا تھا حور کو پانے کے لیے۔ اس کا دل آج جب خود سے بڑھ کر حور نے اس کے ساتھ اس کی محبت کی حق کی طلب کی تو یزدان سے رہا نہ گیا اور وہ محبت کی پکار پر لبیک کرتا اس کے سارے حق اپنے نام کر گیا۔ کچھ ماہ بعد بیگم جلدی کریں، ہال میں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان بے حد ہینڈسم دکھائی دیتا ایک بار پھر دروازہ بجاتا بولا آج ان کا ولیمہ تھا۔ شہریار اور انابیہ کی دھوم دھام سے کی گئی شادی انجوائے کرنے کے ٹھیک 2 دن بعد آج ان کے ساتھ حور اور یزدان کا بھی ولیمہ تھا۔ سب پہلے کپل کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے، بس وہی تھے جو اب تک آ کے نہیں دے رہے۔ جب اچانک دروازہ کھلا یزدان تو آنکھیں پھاڑے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ حور بے حد حسین پری کی طرح دکھائی دے رہی تھی، منہ پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، آج تو آپ بے حد حسین لگتی، میرا ایمان خراب کر رہی ہیں۔ یزدان اس کا حسن دیکھ کر ہی پاگل ہو گیا، تبھی اسے باہوں میں پیار سے بھرتا بولا دانی آج ہماری زندگی کا کتنا بڑا دن ہے، شادی تو ہم دونوں نے روتے سوتے دیکھی، کم سے کم آج کا یہ دن تو ہم دونوں کو جی بھر کر خوشی سے منا لینے دیں۔ آپ کو تو اتنی جلدی ہے، مجھے ٹھیک سے تیار ہو لینے دیں، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے وجود کے گرد مومی ہاتھوں کو آثار باندھتے وہ اب لاڈ سے بولی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے میری حور، اسے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، مجھ سے پوچھو میری حور کی تعریف جو ہر پل ہر لمحہ میرا دل کرتا ہے۔ اب چلو اب انتظار میں ہے سب ہمارا، اگر ابھی نہیں
چلیں تو پھر نہ آپ کو جانے دوں گا، نہ خود جاؤں گا۔ یزدان پیار سے اس کے گالوں کو چومتا بولا۔ جب اس کی بات کا مطلب سمجھتی حور زور سے ہنسی۔ جانتی تھی اس کی محبت حور کے لیے کتنی شدت اختیار کر جاتی تھی، جسے روکنا حور کے بس میں نہیں ہوتا۔ ان کی یہ محبت دیکھتا دور آسمان پر چمکتا چاند بھی مسکرا دیا۔ تو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔